In 1974, teenager Lakpa lived in a Nepalese village high in the Himalayan mountains. Each day she climbed the pathway up to the mountain to graze a herd of yaks. Lakpa saw few people on the steep mountain paths. Only Buddhist monks who chose to build their monasteries far away from the town and the cities lived this high up. Lakpa had heard tales of the Yeti, an ape-like beast that lived in the Himalayas. But the mountains stretched for thousands of miles. She never expected to see one herself. One day, as Lakpa was grazing the herd, she noticed that the yak seemed restless. She thought that a bear or a snow leopard might be nearby. Lakpa led the yaks to a clear, snow-fed stream. She had a drink of water from the stream and then watched as the yaks fed on the tough mountain grass. Suddenly, Lakpa heard a strange, deep grunt. She whirled around as a huge, two-legged creature came rushing towards her. It was a Yeti! Terrified, she broke into a run. But it was too late. The Yeti grabbed Lakpa in its long, hairy arms. She screamed and kicked, but the Yeti was too strong. Then, without warning, the beast dropped her into the icy stream and turned to her yaks. With powerful blows, it quickly killed 3 of the enormous beasts. Lakpa crawled out of the stream and ran home as fast as she could. When the police investigated the scene, they found the Yeti's large footprints, but not the Yeti. Lakpa's story is similar to many other tales of the Yeti reported by people living in the Himalayas. Mountaineers, drawn by the challenge of exploring the world's highest mountain range, have also told chilling tales of this ape-like beast. The name Yeti comes from the Sherpa words Ye Thi, which means that thing. The abominable snowman is another name for the Yeti. In 1951, mountaineer Eric Shipton and his party were exploring an unknown part of the Himalayas when they came across a line of strange footprints in the snow. The footprints looked similar to human footprints, but they were twice as wide. They had sunk much deeper into the snow than the climbers' boot prints, so they must have been made by an incredibly heavy creature. Most amazing of all, the clear toe prints showed that the creature was walking barefoot in the freezing snow. In 1970, another mountaineer had an even closer encounter with a Yeti. Don Willens was climbing in the Himalayas when a Sherpa guide called out, "Yeti coming!" Don looked up but only caught a quick look at the black, ape-like figure before it disappeared behind a ridge. The next day, Don found the creature's footprints in the snow. They were about the same size as his boot prints. The Sherpa guide told him that the footprints were that of a baby Yeti. Later that night, Don saw the creature again. He was looking out of his tent into the bright moonlight when it came lopping along. It headed for a clump of trees and began pulling the branches. Don grabbed his binoculars, but the creature suddenly noticed him and ran across the mountain and out of sight. The number of Yeti sightings caught the interest of some scientists. They studied photos and plaster casts of Yeti footprints and then compared them with other animal footprints. They decided that the Yeti prints could not have been made by a bear, an antelope, or any other known animal. Apart from footprints, little evidence about the Yeti has been found. Yeti footprints are still being found. In 1992, Julian Freeman Atwood found footprints on a glacier that no one had climbed for 30 years.
Will the mystery of the Yeti be solved? What sort of a creature is it? Where does it sleep? How does it find enough food to survive on the snow-covered mountains? Are some mountaineers going to meet a Yeti on one of their climbs? Maybe one day we will discover the answers. क्या हुआ, समझ में नहीं आया? हिंदी में बताती हूँ, पर उसके पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और सुनिए 80। ये जो है ये पाथवे 8th स्टैंडर्ड का लेसन है। यहाँ पे देख सकते एक टीनेजर लड़की है। ये 1974 की स्टोरी है। लकपा नाम की एक लड़की थी जो नेपालीस थी और वो अपने याक को हमेशा चराने के लिए लेके जाती थी। तो वहाँ पे ये घटना उसके साथ घट चुकी है। उसने देखा था कि एक जो बुद्धिस्ट जो रहते हैं उनका एक मंदिर वहाँ पे हुआ करता था और वो वहाँ पे आते जाते उसको दिखाई देते थे। उसके बारे में उसने बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनी थी, लेकिन उसने ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज सुनी थी वो माउंटेन स्नो मैन के बारे में, जिसको हम एटी बोलते हैं। तो ये हिमालयाज़ में रहता है। उसने ऐसे सुना था वो बहुत राक्षस की जैसे है। तो उसके याक जो है ये अलग ही बिहेवियर करने लगे थे। तो उसने सोचा ये ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने एक तो महसूस किया कि यहाँ पे कोई बियर नहीं तो लेपर्ड होगा, ऐसे उसने महसूस किया होगा, इसलिए ये याक ऐसे यहाँ से निकलने के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो उसने सोचा, उसने पहले उनको कंफर्ट में डाल दिया कि नहीं भाई कोई नहीं है, कुछ नहीं है। एनिमल को थोड़ा सा भरोसा दिया। जैसे वो पानी पीने के लिए मुड़ी तब वो पानी पी भी नहीं सकी, उसके पहले उसे जोर की आवाज़ आई। और कौन था? तो वहाँ पे एटी था, जो एकदम राक्षस मानव बोला जाता है, स्नो मैन बोला जाता है उसे। तो ये एटी जो है ये इतना राक्षस के जैसे भाग भाग के उसकी तरफ दौड़ के आया कि वो कुछ भी नहीं कर सकी। वो इतनी सरप्राइज हो चुकी थी, वो डर गई थी। और जैसे ही उसने बाद में भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने उसे कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसे बहुत ऊपर लेके गया और वहाँ से उसने उसे नीचे ज़ोर से पटक दिया, गिरा दिया। बेचारी वो लड़की जो है वो गिर गई। गिरने के बाद उसको बहुत चोट लगी थी। ये एटी जो है इसने उसके 3 याक जो थे वहाँ पे, तीनों को उसने मार दिया, ज़ोर ज़ोर से उनको मार दिया। आप सोच सकते हैं याक कितना ऑलरेडी बड़ा एनिमल रहता है। पुलिस आई, पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। जो पैरों के निशान थे वो तो इंसान के थे, लेकिन इतने बड़े बड़े इंसान के जो है ये तो एटी के ही हो सकते हैं, ये कोई डाउट ही नहीं था। फिर धीरे धीरे उस लड़की की स्टोरी पूरा माउंटेन में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। लेकिन माउंटेन जो हिमालय चढ़ने वाले गिरियारोहक थे वो कहाँ रुकने वाले थे? उनको तो इसको और देखना था। तो शेरपा वगैरह ये जो है ये इनको देखना था, ये मतलब दैट थिंग। तो उन लोगों ने अपना जो है वो स्नोमैन के लिए ट्रैवलिंग छोड़ा नहीं था, वो तो आते जाते रहते थे। तो 1951 में जब एरिक शिप्टन नाम का जो अपने पार्टी के साथ जब वहाँ पे गया था, हिमालय के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहाँ पे, जब उनको ये पैरों के निशान उनको दिखाई दिए थे। तो ये जो है ये छोटे छोटे हैं, लेकिन वो जो है वो बड़े बड़े थे। इसका मतलब है ये जो है ये छोटा बेबी के जैसे, स्नोमैन का बेबी के जैसे ऐसे हो सकता है। उन्होंने देखा, उन्होंने उसके बाद में इसको मतलब इतना बड़ा क्रिएचर हो सकता है, इतने बड़े बड़े पैरों के निशान, ये सब देख के वो डर भी गए थे। और उन लोगों को लगा था जो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी वो सच थी। तो 1970 की बात है, एक बार जब डॉन विलिंग जो है ये अपने शेरपा के साथ जब माउंटेन चढ़ रहा था तब उनको ये दिखाई दिया, बहुत नज़दीक से उन्होंने दिखाई दिया। एटी ने इनको देखा नहीं, पर इसने एटी को देखा था। ये बहुत बड़ा राक्षस के जैसे था, उसके पैर बहुत बड़े बड़े थे। और ये ऐसे यहाँ पे इतना ठंडी ठंडी जगह पे रहता है ये स्नो मैन जो है, ये निशान अब ये पूरी तरह से वो बता रहा था शेरपा कि ये बच्चे के है करके।
उसी रात की बात है जब डॉन वो एक्चुअली डर गए थे और वो अपने टेंट में थे, तब वो टेंट के यहाँ पे उनको एक एटी दिखाई दिया। वो ज़ोर ज़ोर से पौधों को हिला रहा था। उन्होंने देखने के बाद उसने देखा कि ये पेड़ों को निकाल के कुछ किया और बाद में ये भाग गया। ऐसे 2-3 बार ऐसे हुआ कि एटी जो है ये इनको दिखाई दिया था। उसके पैरों के निशान उन्होंने क्या किए, फिर स्नो डाल के, पानी डाल के उसका स्नो बनाया और ये अलग अलग जो निशान है, ये अलग अलग निशान उन्होंने कैच किए, फ़ोटो निकाले और देखा तो बेबी के अलग थे, बड़े वाले जो एटी है उनके अलग थे और दूसरे वाले जो एनिमल वहाँ पे रहते हैं उनके भी अलग थे। जो ज़्यादा ही छोटा रहता है उसके पैर भी छोटे छोटे रहते हैं। तो 1992 में जब जूलियन फ्रीमैन जो है ये वहाँ पे गए थे 30 साल के बाद, तब तक कोई नहीं चढ़ता था वहाँ पे, क्योंकि एटी का डर इतना था, लोगों को वो मार देता था, लोगों को गिरा देता था, चोटें पहुँचाता था, एनिमल्स को चोटें पहुँचाता था। तो एनिमल भी, भेड़ बकरियाँ भी वहाँ पे चरने के लिए नहीं जाती थी। एटी जो है ये खुद ही वहाँ पे रहता था। तो ऐसे वाला एनिमल कैसे रह सकता है अकेला, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, ये अभी भी इनके लिए सब मिस्टीरियस कहानी है। तो मैंने ये मिस्टीरियस कहानी आपको बताने की कोशिश की है। आप भी देखिए, पूरा देखिए, जानिए, पहचानिए और ऐसे